Good morning, children. Today I am going to teach you one of the topic from the Newton's law of motion. इसमें हम ये आज सीखने जा रहे हैं कि जब हम एक लॉन रोलर को जब हम पुल करते हैं तो वो ज़्यादा इजीली पुल हो जाता है rather than pushing जब हम उसे पुश करते हैं. सो बाय यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम आज हम ये देखेंगे सीखेंगे कि कैसे पुलिंग जो है लॉन रोलर का इजी है देन पुशिंग. सो आई हैव टेकन 2 केसेस, पुल एंड पुश ऑफ द लॉन रोलर. सो बेसिकली लॉन रोलर जो है वो सर्कुलर शेप में है बिकॉज ये सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन इसका जो फ्रंट पार्ट है हमें ऐसे सर्कुलर शेप का दिखाई देता है. तो जो रोलर है वो एक सरफेस के ऊपर मूव करेगा. सो दिस इज द सरफेस, सो देयर मस्ट बी द फ्रिक्शन एंड दैट विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन. सो यहाँ पे ड्यू टू द वेट ऑफ द रोलर W is acting in the downward direction and there will be the also reaction force. Now one pulling force is applied at the theta angle from the surface. So we have the two components of this force, F sin theta and F cos theta. So now we will balance these two forces. So we can see F is the applied force and F cos theta is the horizontal force and vertical force is F sin theta, and due to the friction Fk is the frictional force and we all know Fk is equal to mu r. हमने पहले ही क्लासेस में पढ़ रखा है. Then according to the free body diagram we can see r is equal to ये जो वर्टिकल फोर्सेस है R एंड F साइन थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. सो दिस W विल बैलेंस दीज फोर्सेस. सो R प्लस F साइन थीटा इज इक्वल टू W. वी कैन राइट नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन R इज इक्वल टू W माइनस F साइन थीटा. नाउ वी नो द फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू R वेयर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द R W minus F sin theta. Now this is the friction, so it will decide how easily we can move or how difficult we can move. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो F sin theta का जो फोर्स है ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम होगी इन रेस्पेक्ट टू द पुशिंग force. So we will feel easy to pull the roller. Now in the case of push we will see how it would be the bit difficult to push the roller. So this is the roller, W is the weight due to the gravity or force due to the gravity and R dash is the reaction. Now this is the direction of the force in the case of the pushing the object. Now this is the theta from the baseline. So this is the theta. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे इस तरीके से ये फोर्स यहाँ पे इंक्लाइंड है, तो ये दिस इज द लाइक रिजल्टेंट. इफ दिस इज द थीटा देन दिस इज द ऑल्सो थीटा, देन दिस विल बी द F cos थीटा एंड दिस विल बी द F sin थीटा. So we can write R is equal to F sin theta plus W. Now we can see F dash K, this is the frictional force, is equal to mu R dash. Now R की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, then we will have R is equal to F plus R dash is equal to W plus F sin theta. So in this case we can see friction is the more. सो फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होता है प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में. सो फ्रिक्शन जो है ये पुलिंग के केस में कम है rather than the pushing.
So friction in case of the pull is lesser than in case of the push. So pulling easier than pushing. Now next topic is centripetal force. अब न्यूटन्स लॉ का जो सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में के चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दिस इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मैंने इस फोर्स के बारे में पहले भी बात किया है कि बेसिकली इट एक्ट्स इन अ सर्कुलर मोशन. So this is a force required to make a body move along a circular force with uniform speed is called centripetal force. It acts towards the center. Actually circular motion में दो forces लगते हैं, centrifugal and centripetal. तो centrifugal is the force acting outside the center or towards the away from the center we can say, and this is the force where force is acting towards the center. So फॉर्मूला हमें फोर्स का पता है, F इज इक्वल टू ma, बट ये सर्कुलर मोशन में होता है तो यहाँ पे जो भी एक्सलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे जो सर्कुलर मोशन में यूज़ होता है. सो दिस एंगुलर एक्सलरेशन वी नो, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, and we also know the relation between the linear velocity and the angular velocity, v is equal to r omega. Now we can find the value of the acceleration by using this formula. So a is equal to r omega square. Now to find the centripetal force we will put the value, then mr omega square is the one formula and another formula is mv square upon r. And the SI unit will be the Newton because it is a kind of force. Now यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल समझाया है. दिस इज़ द वेरी सिंपल. यहाँ पे क्या करना है, वी हैव फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इज ऑल्सो ए फोर्स. तो यहाँ पे जब एक थ्रेड में हमने क्या, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि एक 100 ग्राम का मास एक स्टोन जो है वो टाई कर दिया गया है. अब इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जब इसे हम मूव कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक एक कोन का हमें शेप मिल रहा है. तो ये जो वायर है इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगी, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा हमें ये फाइंड करना है. और ये जो वायर है इसका जो रेडियस है जो कि एक सर्कल बना रही है वो गिवन है, इट इज़ द 15 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड द टेंशन. तो टेंशन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r, अदरवाइज m r ओमेगा स्क्वायर. तो हमें यहाँ पे मास गिवन है तो वी हैव द डेटा मास एंड r इज ऑल्सो गिवन. वी हैव टू फाइंड द ओमेगा. वन मोर थिंग इज देयर, 100 ग्राम वेट इज टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड whirled around in a horizontal circle of the radius 15 centimeter at the rate of 3 rpms. मतलब 3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. हमें ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है. तो वी कैन सी जो हमें ओमेगा की वैल्यू जो हम इस वैल्यू से फाइंड कर सकते. तो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी जिसे कि हम n बोलेंगे, 3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n एंड n इज़ द फ्रीक्वेंसी which value is 3. So we can put the value 2 pi into 3 is equal to 6 pi. Now by using the formula m r omega square, so this is the 6 pi square, and by putting all the value we can get 5.334 Newton. So this is the answer. Now next topic is the circular motion of a car on a level road. लेवल रोड कहने का मतलब है कि इट इज़ द प्लेन रोड. बहुत सारे रोड होते हैं जिसके जो एंड्स है वो कोई वन पार्ट जो है, वन साइड जो है वो हाई होते हैं, दूसरा साइड जो है वो लो होता है. बट इन दिस केस दिस इज़ द लेवल रोड, दिस इज़ द बैलेंस. ये कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं है. सो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि सर्कुलर मोशन में हमें जो एक वेलोसिटी मेंटेन करनी रहती है तो वो कितना होगा एंड किस चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा. यहाँ पे हमने लिया है वन कार, इट इज़ रनिंग इन अ सर्कुलर और कर्व रोड इस तरीके से.
So this is the surface of the road where F1 is the friction. Now एक्चुअली ये जो कार है इसके दो व्हील्स है, तो यहाँ पर जो भी सरफेस टच हो रहा है वहाँ पे फ्रिक्शन F1 हमने माना है और दूसरी जगह पे F2 माना है. एंड ड्यू टू द वेट ऑफ द कार mg इज द वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे जब ये वेट यहाँ पे जब ये लग रहा है तो हमने पढ़ा है कि जहाँ पे सरफेस होता है वहीं पे रिएक्शन फोर्स लगता है. तो यहाँ पे जो सरफेस से इसके जो व्हील्स है वो टच कर रहे हैं, तो ये R1 रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज द R2 रिएक्शन. सो टोटल जो रिएक्शन है वो R1 प्लस R2 हो जाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ वी विल बैलेंस F1 इज इक्वल टू म्यू R1 एंड F2 इज इक्वल टू म्यू R2. Total friction is equal to F1 plus F2 mu R1 plus R2. Now total friction is equal to mu mg हो जाएगा because mu R is the friction and R की वैल्यू जो है यहाँ पर because this is in the stable form, so R1 plus R2 is equal to mg. So this is the total friction. So to keep the car on the road, friction must be equal or greater than the centripetal force. So जब ये frictional force जो है वो तभी बैलेंस होगा जब ये centripetal force के बड़ा होगा या बराबर होगा. So this is the situation and from this situation we can find the value of the V. तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू जी ग्रेटर और इक्वल टू द वी स्क्वायर अपॉन आर, देन वी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू म्यू आर जी. सो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी द अंडर रूट म्यू आर जी फॉर द सेफ जर्नी और मूवमेंट ऑफ द कार, ताकि कोई भी एक्सीडेंट या नथिंग should be there unsafe. So this is the derivation for the calculation of the banking we can say circular motion of a car on a level road. So this is the velocity. Next topic is the circular motion of a car on a banked road. अब यहाँ पे banked road का कहने का मतलब है कि road is little bit inclined, थोड़ा सा ये एक साइड जो है उसका ऊंचा रहेगा थीटा एंगल पे. अब उस पे जब कार जो है वो मूव करेगी, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी फॉर द सेफ ड्राइविंग वी विल सी. सो इन दिस केस हमने जैसे इंक्लाइन प्लेन पे फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना सीखा था, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे. सो दिस इज द ड्यू टू द वेट ऑफ द कार mg, देन दिस इज द r sin थीटा, और यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा ड्यू टू द सरफेस वो इस डायरेक्शन में लगेगा. सो इसके दो कंपोनेंट होंगे r cos थीटा एंड r sin थीटा. ये एंगल जो है वो थीटा है, तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा. तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है एक थीटा एंगल पे, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे f cos थीटा एंड f sin थीटा. Now we will balance the forces. So in the vertical direction, in the horizontal direction में हम देखेंगे कि कौन कौन से forces हैं. तो ये r sin थीटा और f cos थीटा जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. सो r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. सो mv स्क्वायर अपॉन r. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी विल सी इन द vertical direction r cos theta is equal to mg plus f sin theta. This is the f sin theta and downward direction में हमारा एक mg भी है. So we can write r cos theta is equal to f sin theta plus mg. So this is the equation. So यहाँ से हमें mg की वैल्यू फाइंड करना है, तो r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg.
This is the second equation. Now we will divide both these equation. So we will have r sin theta plus f cos theta divided by r cos theta minus f sin theta is equal to v square upon आर जी. ये दोनों को डिवाइड करने के बाद आ चुका है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा को न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे. तो वी विल हैव नेक्स्ट स्टेप tan थीटा प्लस एफ फ्रिक्शन अपॉन आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ आर tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. नाउ आर इज इक्वल टू formula we know friction upon mu और mu is equal to f upon r. now put the value. अब हमें यहाँ पे f upon r की जगह पे mu रख सकते हैं according to the formula. so we will have the formula tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta is equal to v square upon rg. so v square is equal to mu tan theta ब्रैकेट आर जी अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू प्लस टैन थीटा आर जी अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा. नाउ इफ द म्यू इज इक्वल टू 0 लाइक देयर इज ए नो फ्रिक्शन सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट टैन थीटा आर जी. सो टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी एंड थीटा की वैल्यू जो है वो टैन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगी. सो दिस इज़ द लेवल ऑफ द रोड. ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें हमें इंक्लाइन प्लेन पे फ्री बॉडी डायग्राम जैसे हम ड्रॉ करते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके फर्दर आगे हमें डिराइव करना है फार्मूला. एंड लेवल ऑफ रोड में हमें नॉर्मल जो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो यूज़ करना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. मतलब जब कोई साइक्लिस्ट जो है थोड़े से कर्व रोड में और सर्कुलर रोड में अगर जब टर्निंग जो लेगी वो थीटा एंगल पे बेंड होके, तो उस केस में जो है वेलोसिटी हमें कितना मेंटेन रखना है फॉर द सेफ ड्राइविंग और साइकिलिंग वी कैन सी. So this is the diagram, this is the cycle and due to the weight of the cycle यहाँ पे mg थीटा mg जो है वो डाउनवर्ड फोर्स होगा यहाँ पे. और ये जो साइकिल है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है अंडर द रेडियस r ऑफ द कर्व पाथ. नाउ ये जो थीटा एंगल है तो इसके सरफेस की वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा. तो ये टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा. सो वी कैन सी एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा फर्स्ट एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. आर जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो डिवाइड 2/1. ठीक है, तो दिस इज द formula for the theta is equal to tan inverse v square upon r g. ठीक है, so this is the topic जो कि हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करना था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, तो दीज आर द इजी क्वेश्चन यू कैन डू. और नहीं अगर होता है तो यू कैन आस्क इन क्लास. सो दिस all for the today. In next class we will start the new chapter, work energy and power. Okay, thank you.